Hello students, you are watching Sonika Science classes and in today's class we are going to discuss how strong an acid and base is. Okay, हम पहले कर चुके हैं strong acids, phenomena of strong acids, weak acids, strong base and weak base. जो जितना dissociates completely होगा वो strong acid और base होगा, and if an acid or base dissociates partially then it will be named as weak acids or weak base. तो सबसे पहले हम केस लेंगे प्योर वाटर का. लेट्स चेक वेदर प्योर वाटर इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर और डज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. प्योर वाटर फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा वाटर. नाउ दिस वाटर विल आयनाइजेस इनटू H positive ion and hydroxide ion, OH negative ion. Now this dissociation rate will be equal, means concentration of H positive ion and concentration of OH negative ion in case of pure water will be equal. It means concentration of H positive ion in pure water will be equal to concentration of OH negative ion in pure water. Means if number of H positive ion and hydroxides ion are equal, then pure water will not conduct electricity. Means it will be neutral in nature. Neutral in nature means अगर हमारी concentration or you can say number of H positive ion or number of OH negative ion, number of H positive ion and number of hydroxide ions are equal, then its nature will be neutral and pure water will not conduct electricity. Does not conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया था. When current flows, current will flows whenever there is a potential difference. Because of potential difference, current will flow. Means अगर इस फिनोमिना को यहाँ अप्लाई करें हम, if there is a difference in number of hydroxide ion and hydrogen ion, if there is a difference of hydroxide ion and hydrogen ion, then only current will pass through any electrolyte or solution. In case of pure water, these number are equal. Number are equal means it will not allow to current, it will not allow to pass the current through it. अब इसी फिनोमिना के बेस पे हम करेंगे हाउ एसिड्स एंड बेसिस अलाउ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस द केस ऑफ एसिड्स. एसिड्स का हमने किया था डाइल्यूशन. व्हेन फर्स्ट केस हम करेंगे डिस्कस एसिड्स का. व्हेन एसिड्स आर मिक्स्ड विद water, HCl, you can suppose take hydrochloric acid. Hydrochloric acid is mixing with water. Dilution process हमने की थी. Now this water will dissociate into H positive and hydroxide ion. This hydrochloric acid will dissociate into H positive and chloride ion. Now you can see clearly amount of H positive ion, amount of hydrogen ion is greater than hydroxide ion. अभी हम सिर्फ एक केस ले रहे हैं, बट हमारा जितना mLs हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के या फिर सल्फ्यूरिक एसिड और यू कैन से नाइट्रिक एसिड का हम इंक्रीज करते जाएंगे, ये हमारा जो डिसोसिएशन रेट है H पॉजिटिव आयन का वो इंक्रीज करता जाएगा. सेफ्टी साइड के लिए हम सिर्फ अभी H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन सिंपली सिंगल लेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव आयन कहाँ, H पॉजिटिव आयन के सोर्सेस क्या क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर. हाइड्रोक्साइड आयन का
हाइड्रोक्साइड आयन का सोर्स क्या है? ओनली वाटर. तो क्लियरली यू कैन से number of hydrogen ion will be greater than number of hydroxide ion in case of acids, and if there occur a difference of hydrogen ion and hydroxide ion, it will conduct electricity. So it will conduct electricity, or you can say on adding acid to water, the amount of, or you can say concentration of hydrogen ion will goes on increasing. Concentration of H positive ion will be greater than concentration of hydroxide ion. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप. अगर हम एसिड और वाटर की मिक्सिंग की तो हमारा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? हाइड्रोजन आयन की. हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन, देयरफॉर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब हम केस लेंगे बेस का. बेस में कैसे होता है? 1 सेकेंड प्लीज. Okay, sorry for the disturbance. Okay, now we will discuss the base part. Now if we mix base with water, हमने किया था जब भी हम the bases which are soluble in water are called alkalis. alkalis किया था हमने. Okay, अब base you can take any base. सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो. ओके, और वाटर हमारा H2O है. दोनों को मिक्स करेंगे, आयनाइजेशन सेम रहेगी. वाटर आयनाइजेस टू H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन. दिस विल आयनाइजेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. कोई भी केस ले लो एक. यहाँ पे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का केस लेंगे तो OH हाइड्रोक्साइड आयन वी आर गेटिंग फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एज वेल एज वाटर. हाइड्रोक्साइड आयन हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी मिलेगा और वाटर से भी मिलेगा. एंड वेयर डू वी गेट हाइड्रोजन आयन? हाइड्रोजन आयन वी आर गेटिंग ओनली फ्रॉम वाटर. So we can say clearly concentration of hydroxide ion will be greater than concentration of hydrogen ion, or you can say number of hydroxide ion will be greater than number of hydrogen ion. This will be the case for bases with water. Base. And if this happen, then salt's nature will be basic in nature. अगर ये हमारी conditions given है कि concentration of hydroxide ion is greater than concentration of H positive ion, then our salt nature will be basic. अगर हमारा इसके opposite होगा, if concentration of H positive ion will be greater, then salt's nature will be acidic in nature. Clear? Okay. ये हमारा केस है बेस का, एसिड का कर चुके हैं, और न्यूट्रल सॉल्ट का भी केस कर चुके हैं. न्यूट्रल सॉल्ट में हमारे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी. इन केस ऑफ एसिड्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन, एंड इन केस ऑफ बेसिस हाइड्रोक्साइड्स आयन कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन. अब हम बात करेंगे पीएच स्केल की. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि भी जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, वीक बेस है या फिर वीक एसिड है, वो किस बेस पे हम किस बेस पे हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे या फिर वीक कहेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे एक पीएच स्केल से. पीएच स्केल इज
base is measured, or you can say strength of an acid or base is measured on a scale of numbers. That scale is named as pH scale. Clear है? अब now what does P and H stands for? P stands for potenge, which means power. H stands for concentration of hydrogen positive ions. Okay, and now this pH scale will be inversely proportional to concentration of hydrogen ions. Okay, अगर हमारा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, जो पीएच स्केल का नंबर है, पीएच स्केल नंबर यू कैन से, पीएच स्केल नंबर विल बी लेस. हमने नंबर्स लिए हैं 0 to 14. मीन्स अगर हमारी, this is pH scale, here we are taking numbers 0 to 14. Now this point we have said that pH scale number will be inversely proportional to concentration of H positive ion. जितना हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, दिस नंबर विल बी लोअर डाउन 0 to 7. This 7 number will be for neutral salt. This will be for neutral salt. And hydrochloric acids, जितना हमारा 0 को अप्रोच करता जाएगा, means nature of that will be more acidic, or you can say strong acid. Clear है? ये हमारा जितना 0 to 7, or you can say below 7 belt will be acidic in nature. Below 7 salts will be acidic in nature, and above 7 salts will be basic in nature. What about 7? If any salt is having number 7, then it will be neutral in nature. You can say pure water, or you can say sodium chloride is also neutral in nature, and alcohols are also neutral in nature. These will not conduct electricity. However, जो हमारा सोल्ट है सोडियम क्लोराइड, अगर हमारा सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. अगर इसमें वाटर मिक्स किया जाए या फिर ये मेल्ट हो जाए, और यू कैन से सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जब इसको सॉल्यूशन मींस वाटर में मिक्स किया जाएगा, देन सोडियम क्लोराइड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है हमारा? जैसे जैसे हमारा लोअर डाउन होता जाएगा नंबर 7 से, it will be becoming more acidic, and if pH number increasing towards 14, it will be becoming basic in nature. क्लियर है हमारा? तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स किए थे, these are हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग बेस भी किए थे हमने. स्ट्रॉन्ग बेस हमारे क्या कौन कौन से थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कर चुके हैं ये चीज हमारी. पीएच स्केल है हमारा नंबर्स का 0 to 14, ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर डिसाइडेड. जितना हमारा बिलो 7 जाते जाएंगे, 0 to 7 रेंज है हमारी एसिड्स की. जितना हम 0 को अप्रोच करेंगे उतना हमारा
स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रेंज में आते जाएंगे, और जितना हम अबव 714 को अप्रोच करेंगे उतना हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की टुवर्ड्स अप्रोच करेंगे। ओके, और इसको अब हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की उसमें देख लेते हैं। सपोज करो दिस इज आवर पीएच स्केल, इट इज pH 0, 7 and 14. This we are saying it is strong acid, and this we are saying strong base. At number 7 salt will be neutral. क्लियर है हमारा? हमने किया था pH scale number is inversely proportional to concentration of hydrogen ion. क्लियर था? It means ऐसे वेरी करेगा ये, it is varying like this. क्लियर? ये जो रेड पोर्शन है मीन्स ये है हमारा एसिडिक नेचर, मीन्स अगर हम यहाँ हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा है H पॉजिटिव आयंस की तो नंबर क्या है हमारा 0। जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो नंबर क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज। अगर हमारे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज है मीन्स ये देखो यहाँ पे ज्यादा है तो हमारा पीएच नंबर कितना आ रहा है लोअर, पीएच नंबर विल बी लेस। अगर हमारी यहाँ पे चेक कीजिए जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव की दैट इज डिक्रीजिंग मीन्स पीएच नंबर विल बी इंक्रीजिंग। यहाँ पे हमारी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो क्या है नंबर जो हमारा पीएच स्केल पे वो इंक्रीज कर रहा है। और इसको रिवर्स में भी कर सकते हो, ये तो है हमारा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और यू कैन से जो ये है एक तो था हमारा ये तो थी हमारी H पॉजिटिव आयन की टर्म में, और यू कैन से pH scale number will be directly proportional to concentration of hydroxide ion. Means अगर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होगी तो हमारा पीएच नंबर भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम जो डिवाइड किया है हमने ऐसे है हमारा ऊपर वाले पोर्शन में है हमारी किसकी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की, ये हमारी H पॉजिटिव आयन की है। लोअर पोर्शन में हम ले रहे हैं OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? अब ये जो पोर्शन है हमने पीएच स्केल नंबर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है मीन्स हमारा नंबर भी ज्यादा है। यू कैन से दिस इज फॉर एसिड्स H पॉजिटिव आयन। अगर हमारी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है इट मीन्स पीएच नंबर विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे हमारी हाइड्रोक्साइड आयन क्या है कम है, दीज आर डिक्रीजिंग सो आवर पीएच नंबर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज होगी तो हमारा जो पीएच स्केल है पीएच स्केल नंबर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। क्लियर है ये हमारा? जितना हमारा स्ट्रॉन्गर जितना हमारा नंबर 0 को अप्रोच करता जाएगा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती जाएगी। जितना हम 14 को अप्रोच करेंगे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो नियर अबाउट डिक्रीज करती जाएगी, और यू कैन से हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी मैक्सिमम। क्लियर हमारा? ओके, this will be inversely proportional to hydrogen ion and pH scale will be directly proportional to hydroxide ion। अब ये तो हमने कर लिया बेसिक्स के भी हम किस बिहाफ पे एसिड्स और बेसिस को मैक्सिमम नंबर दे रहे हैं 0 to 14 और यू गिविंग इट टू नंबर 7। अब हम करेंगे पीएच स्केल का पीएच नंबर का हमारा डेली रूटीन में हमारे जो लाइफ प्रोसेस है
उस पे क्या क्या यूजेस है, क्या इफेक्ट्स है उसके। फर्स्ट वी आर डूइंग इट विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स बॉडी और प्लांट्स कर चुके हैं हम, और यू कैन से ह्यूमन बॉडी बोल सकते हो आप। फर्स्ट नंबर इज ह्यूमन बॉडी। वी नो आवर स्टमक रिलीजेस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब रिलीज करता है मीन्स इट विल हेल्प इन लाइफ प्रोसेस में। कर चुके हैं क्या क्या फंक्शनिंग है, किलिंग द जर्म्स, जर्म्स को किल करना है, और टू मेक द मीडियम ऑफ फूड इनटू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में इसको फूड का नेचर कन्वर्ट करना है। किलिंग जर्म्स है एंड फूड के नेचर को एसिडिक करना है। बट हाउएवर इफ दिस अमाउंट ऑफ HCl इंक्रीजेस, अगर हमारा HCl इंक्रीज करेगा तो व्हाट विल इट कॉज? इरिटेशन, एसिडिटी, यू कैन से एसिडिटी और इरिटेशन इन स्टमक कॉज करेगा। हमारा जो HCl है वो जो सिक्रीट कर रहा है स्टमक, इसको रिमूव करने के लिए क्या हम यूज करेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा? एसिड्स। एसिड्स के बेस को डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, कॉमनली नेम एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यू कैन ऑल्सो यूज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यू कैन ऑल्सो यूज। फर्स्ट जो हमारी एसिडिटी वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या फिर हम लेंगे बेकिंग सोडा। अब है हमारा जो प्लांट्स है, फर्स्ट हो गया हमारा केस एक्वेटिक लाइफ पे हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है। सेकंड इज एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में हमारा जो फिशेस वगैरह हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उसको पीएच लेवल कैसे इफेक्ट करेगा? नॉर्मल पीएच न्यूट्रल है हमारा 7, बट जो एसिड रेन होगी, एसिड रेन कंटेन अराउंड पीएच स्केल हमारा एसिड रेन का 5.5, 5.432 ऐसा कुछ होगा। ओके, नियर अराउंड हम लेंगे। एसिड रेन का पीएच लेवल होता है 5.6। अगर हमारा ये रेन वाटर में मिक्स होगा, रेन वाटर में मिक्स होगा तो रेन वाटर क्या होगा? इट विल बिकम एसिडिक इन नेचर। रेन वाटर हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। बट जो फिशेस हैं दे डजंट वांट द एसिडिक मीडियम ऑफ वाटर। क्लियर है ना? दे रिक्वायर न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम रिक्वायरमेंट है उनकी लाइफ, अपनी जो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब करने की। बट बिकॉज ऑफ एसिड रेन, this their ocean water or you can say river water will turn into acidic in nature। अब इस acidic nature की वजह से क्या होगा? killing of fishes होगी हमारी, killing of fish होगी। अब killing of fish ना हो और you can say removal of fishes ना हो, हम क्या कर सकते हैं? we should use bases for the removal of this acids। कौन से बेसिस यूज कर सकते हैं हम? क्विकलाइन यूज कर सकते हैं, स्लेट, और यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट। नॉर्मली नोटिस किया हो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट्स को डलवाया जाता है रिवर्स में, सो दैट वी कैन दे कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स विच वाज कॉज्ड बाय एसिड रेन। क्विकलाइन, कैल्शियम कार्बोनेट्स, quicklime and calcium carbonates can be, or you can say also slaked lime. These are also bases. These can be added to river water or oceans so that they can nullify the effect of acid rain and in order to maintain the pH level around 7. Clear? अब हमारा aquatic life में pH का रोल क्या था? नेक्स्ट रोल हम करेंगे
सॉइल की फर्टिलिटी पे। नेक्स्ट रोल है हमारा सॉइल पीएच पे। हमारा सॉइल पीएच कितना होना चाहिए? अराउंड न्यूट्रल होना चाहिए, अराउंड 7 होना चाहिए। बट अगर हमारा सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाए, और व्हाट इफ अगर हमारा सॉइल नेचर एल्केलाइन हो जाए, अगर हमारी सॉइल, इफ आवर सॉइल बिकम टू एसिडिक और टू एल्केलाइन, इट विल बी नॉट एबल टू ग्रो स्पेसिफिक जो प्लांट्स है, हमारी क्रॉप्स हैं, दे विल नॉट प्रोड्यूस द प्रॉपर यील्ड, यू कैन से। तो इस एलिमेंट को किसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर हमारा एसिडिक है सॉइल, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें? बेसिस, कुछ बेसिस हमारे जो है उनको ऐड करेंगे। बेसिस विल बी एडेड। अब ये बेस कौन से हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं? क्विक लाइम ऐड कर सकते हैं, स्लेक्ट लाइम हम यूज कर सकते हैं, और यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबको हम ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है चॉक। नॉर्मली हम कैल्शियम कार्बोनेट को चॉक कहेंगे। ओके, एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द यूज ऑफ क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम एंड चॉक, और यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट। एंड व्हाट इफ द सॉइल बिकम मोर एल्कलाइन? अगर एल्कलाइन हो जाएगी तो भी तो हमारी क्या होगा, जो क्रॉप्स हैं वो यील्ड नहीं कर पाएंगी प्रॉपर प्रोडक्शन। तो उसके लिए हमें क्या, वी हैव टू मेक द सॉइल न्यूट्रल बाय यूजिंग द एसिड्स। ऐसा तो नहीं है कि भी हम एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें सॉइल में जाके, नो, दैट विल हार्म द सॉइल। हमें अब क्या यूज करेंगे? जो कंपोस्ट और जो मैन्योर है, that will contain acids in itself. So if the soil nature is alkaline, we should use compost and manure to nullify the effect of alkalinity that is present in the soil, so that the nature of soil become around 7, or you can say around neutral. Clear? नेक्स्ट पार्ट है हमारा टूथ डिके का। रहा हूं एसपीएच स्केल का हमारा टूथ डिके भी होगा। जो हमारा माउथ का अगर जो पीएच स्केल है, इफ पीएच स्केल ऑफ आवर माउथ लोअर्स डाउन टू 5.5, अगर पीएच स्केल हमारे माउथ का 5.5 के अराउंड आ जाएगा तो इट्स इफेक्ट विल बी एसिडिक इन नेचर। और बिलो 7 हमारा क्या है, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। बट क्या होगा, अगर बिलो 5.5 आएगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। दैट विल कॉज द डिकेइंग ऑफ टूथ। सपोज अगर हमने शुगर्स खाए हैं तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है दैट विल कन्वर्ट दिस शुगर इनटू एसिड्स, शुगर को एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड दिस एसिड विल डिके द टूथ, और यू कैन से डिके द टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। This process can be prevented by using some base. तो base क्या है, we should use always toothpaste, you can say, जितनी भी हमारी टूथपेस्ट हैं that are basic in nature, कोलगेट है, पेप्सोडेंट्स हैं, हमारी जितने भी हैं they are बेसिक इन नेचर। तो जो एसिड इफेक्ट हमारा आया है, एसिडिक इफेक्ट, दैट इज अराउंड, अगर हमारा फूड की प्रेजेंस से या फिर शुगर की प्रेजेंस से जो एसिड में कन्वर्ट किया है बैक्टीरियाज ने, दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ टूथपेस्ट। सो टू प्रिवेंट द टूथ डिके वी शुड यूज properly toothpaste, or you can say we should use toothbrush around twice a day. क्लियर है हमारा ये चीज? ओके। और जो टूथ इनेमल है, हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज टूथ इनेमल। जो हमारा टूथ इनेमल है,
that is the hardest bone. It is the hardest bone which is made up of calcium phosphate. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। जो हमारा टूथ एनेमल है वो हार्डेस्ट बोन है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो इस कैल्शियम फॉस्फेट को भी ब्रेक डाउन कर देगा। ओके, इसको भी हमारा डैमेज कर सकता है। क्लियर? ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जो बीज वगैरह, बीज स्टिंग करती हैं, कुछ जो नेटल लीव्स हैं उनमें हमारा क्या इफेक्ट्स है नॉर्मली नोटिस किया है। एनिमल स्टिंग्स, हनी बी हम सब में से और मोस्टली कभी ना कभी तो हनी बी स्टिंग करती ही है। हनी बी के स्टिंग करने के बाद इरिटेशन होती है। व्हाई दैट इरिटेशन हैपेंस? बिकॉज जब भी हमारी हनी बी स्टिंग करेगी, दैट विल inject some acidic liquid into us. Acidic liquid वो इंजेक्ट करती है। Now because of this acidic liquid, we feel irritation on our hand, or you can say pain in our hand if it bites on our hand. इस पेन को रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग बेस। यू कैन से बेकिंग सोडा अप्लाई करो इस पे। यू कैन अप्लाई बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। सेकंड है हमारा हनी बी है, वास्प है। अगर हमें वास्प बाइट करेगा तो क्या होगा? दैट विल इंजेक्ट सम एल्कलाइन लिक्विड। अगर उसने एल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट किया है तो फिर भी कुछ ना कुछ इरिटेशन होगा हमें। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? अगर लिक्विड हमारे अंदर गया है एल्कलाइन, वी शुड यूज एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यूज नहीं करेंगे, वी शुड यूज विनेगर, वीक एसिड। वी शुड यूज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? विनेगर। क्लियर है? जब भी हमारे अंदर एल्कलाइन लिक्विड जाएगा हमें यूज करना है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा एंट। एंट भी मोस्टली सबको स्टिंग करती है। और एक है हमारा नेटल लीव्स है, नेटल प्लांट है। नेटल प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो थोड़ा थोड़ा उनमें क्या है? कांटे होते हैं। तो बाई चांस अगर हम उनको बाईपास करते हैं तो लग सकते हैं। लगेंगे तो दैट दीज टू इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड इनटू अस। मिथेनोइक एसिड का ही दूसरा नाम है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। जब भी हमारा एंट स्टिंग्स होगी या फिर नेटल लीव स्टिंग्स होगी, दे विल इंजेक्ट अ मिथेनोइक एसिड और यू कैन से फॉर्मिक एसिड इनटू द ह्यूमन बॉडी। अब इसको एसिड्स इंजेक्ट किया है तो कैसे रिमूव कर सकते हैं उस पेन को? बाय यूजिंग बेस। बेस को यूज करके हम उसको यूज कर सकते। बेस हमारा क्या होगा? सेम बेकिंग सोडा और यू कैन से बेकिंग पाउडर। अब नेटल जो लीव्स हैं, नेटल प्लांट है हमारा, तो उसके सराउंड्स में नेचर ने भी प्रोवाइड किया है कि भी अगर ये प्लांट एसिडिक स्टिंग्स देगा तो उसके एवरेज में हम नियर अबाउट क्या होगा? डॉग प्लांट। जहां भी हमारा नेटल प्लांट होगा उसी के सराउंडिंग में देयर प्रेजेंट अ डॉग प्लांट। इट्स नेचर विल बी बेसिक इन नेचर। नेटल प्लांट का नेचर क्या है? आफ्टर स्टिंगिंग एसिडिक इन नेचर। डॉग प्लांट का नेचर क्या है हमारा? बेसिक। अगर हमारा नेटल लीव्स की स्टिंग्स हुआ है, यू कैन यूज डॉग प्लांट। ओके, डॉग प्लांट और यू कैन ऑल्सो यूज बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ये हमारे सिंपली ह्यूमन लाइफ को हमारा पीएच स्केल कैसे इफेक्ट कर रहा है वो किया था हमने। नाउ वी विल बी डूइंग, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्ट।
अब वो नेचर ऑफ सॉल्ट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, उसको चेक करना है। न्यूट्रलाइजेशन हमने रिएक्शन की थी, उसी के थ्रू सबसे पहले उसी से करते हैं स्टार्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। फर्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी हमारी? व्हेन एन स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेस दे प्रोड्यूस अ सॉल्ट विच विल बी न्यूट्रल इन नेचर। जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट करवाएंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस से, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, बट उस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल कर सकते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम कौन कौन से ले सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ले सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यू कैन से। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। दे विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यहां से H जाएगा हमारा, OH यहां से जाएगा। दे विल फॉर्म वाटर एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट, मीन्स सोडियम क्लोराइड plus water. Now this sodium chloride will be neutral in nature. Normally अगर हमारी ये रिएक्शन ना दी हो, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? What is the nature of sodium chloride? सोडियम क्लोराइड क्या हमारा? अगर सॉल्ट है that will be formed from some acid or bases. You can identify कि NaCl अगर है तो हमारा एसिड कौन सा यूज हुआ होगा? HCl। बेस कौन सा यूज किया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू कैन फॉर्म द रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म करेगा हमारा वाटर and this will form potassium sulfate. Potassium sulfate plus water will be formed. Now this potassium sulfate will be neutral in nature. Neutral in nature. अब K2SO4 है तो दिमाग कैसे लगाएंगे कि अगर SO4 है तो एसिड क्या रहा होगा हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड। ये है तो बेस क्या रहा होगा हमारा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। सिंपली हमारा ये गिवन होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट दोनों स्ट्रॉन्ग है तो नेचर ऑफ सॉल्ट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इफ वी टेक स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस। एसिड्स तो स्ट्रॉन्ग है हमारा बट वी आर टेकिंग weak base, तो nature of salt will be acidic. strong क्या है? acid है। weak हमारा base है, तो जो salt आएगा उसका nature क्या आएगा? जो चीज strong होगी उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा ना, so nature will be acidic. acidic salt you can say. it will produce acidic salt. example हम क्या ले सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हम क्या ले सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वीक बेस क्या ले सकते हैं हम?